गाइस, वेलकम बैक टू बी माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। इस क्लास में चैप्टर 1 का नाम है हमारे का इंडिया लोकेशन, भारत स्थिति। मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी पूरा चैप्टर कंप्लीट समझा के बताऊंगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। You have already seen the map of India in the previous classes. पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। Now you closely examine the map of India. Figure 1.1. Mark the southernmost and northernmost latitudes, the easternmost and westernmost longitudes. अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशतारीय विस्तार ज्ञात कीजिए। द mainland of India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east to Gujarat in the west. क्या आप इसके दक्षिण और उत्तर अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों का चित्र कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द सी up to 12 nautical miles, about 21.9 km from the coast. See the box of conversion. भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखिए। ये देखिए, योर साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 60 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल. लेट अस try to analyze the implications of having such a vast longitudinal and latitudinal extent. हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार परिमाणों का विश्लेषण करें। If you work out the latitude and longitude extent of India, they are roughly about 30 degree, whereas the actual distance measured from north to south extremely 3,240 km, and what from east to west is only 2,933 km. What is the reason for this difference? Consult chapter 3 on the topic latitude, longitude and time, the book. प्रैक्टिकल वर्क ज्योग्राफी पार्ट इन NCERT 2006 टू फाइंड आउट। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व में से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक This difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases toward the poles, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere. Find out the distance between two latitudes. ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं
के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। From the values of latitude, it is understood that the southernmost of the country lies within the tropics and northern part lies the subtropical zone or the warm temperate zone. This location is responsible for large variation in landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country. अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भूआकृत जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। Now let us observe the longitude extent and its implication on the India people. From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearby 30 degrees, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of your country. You are familiar with the concept of India Standard Time (IST). What is the use of standard meridian? While the sun rises in the northeastern state about 2 hours early as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugh, Imphal in the east and Jaisalmer, Bhopal and Chennai in the other parts of India show the same time. Why does this happen? अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाएं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करते हैं। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक यामतोड़ का क्या उपयोग है? ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसा समय दिखता है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें एक मानस यामताल गुजरती है। This is general understanding among the countries of the world. To select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 of longitude, that is 82 degree 30 east, has been selected as standard meridian of India. India Standard Time is held Greenwich Mean Time by 5 hours and 30 minutes. There are some countries where there are more than one standard meridian due to their vast east to west extent. For example, USA 7 time zones. विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामतोड़ को 60 डिग्री 30 देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 पूर्व यामतोड़ को भारतीय मानक यामयोतार चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक अधिक मानस देशांतर रेखा है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। यह है इंडिया का मैप। नेम
A few places in India through which the Standard Meridian passes. भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा के पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों का नाम याद है? Size. The size of India has evolved high with great physical diversity. Thus, you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, and Kaveri, green forested hills in the northeast and south India, and the vast sandy expanse of Marusli. You may further appreciate that bounded by the Himalayas in the north, Hindu Kush and Suliman Range in the northwest, Purvanchal Hills in the northeast, and by the large expanse of the Indian Ocean in the south. It forms a great geographic entity known as the Indian subcontinent. It includes countries Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and India. भारत के आकार में इनकी विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में उच्च पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनांचलीय पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक भारत भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्टेड एज ए formidable physical barrier in the past, except for a few mountain passes such as Khyber, the Bolan, the Sipikla, Nathula, the Bomdila, etc. It was difficult to cross it. It has contributed toward the evolving of a unique regional identity of India's subcontinent. भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलान, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल तथा हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur Peninsula. Part of India extends towards the Indian Ocean. This has provided country with a coastline 6,100 किलोमीटर, the mainland and 7,517 kilometers in the entire geographical coast of the mainland plus the island group Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. Thus, India as a country is physically diverse, providing occurrence of varied resources. भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अंत एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि में विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं।
जैसे कि इंडिया एंड इट्स नेबरी, इंडिया की जो नेबर्स है उनके बारे में हम अब इस पैराग्राफ में जानेंगे। Examine the location map of India. Figure 1.2. You will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia, bordering the Indian Ocean and its two arms, extending in the form of Bay of Bengal and the Arabian Sea. The maritime location of Peninsula India has provided links to its neighboring regions through the sea and air routes. Prepare a list of Indian neighboring countries by consulting the map. Sri Lanka and Maldives are the two island countries located in the Indian Ocean which are our neighbors. Sri Lanka is separated from India by the Gulf of Mannar and Pak Strait. भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसके दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीप भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्र से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत एक पड़ोसी देशों की एक सूची बनाए। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी। श्रीलंका भारत के मत्रार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ए गल्फ एंड स्ट्रेट, खाड़ी तथा जलसंधि के अंतर स्पष्ट कीजिए। Do you think that physical barrier in a hindrance in interaction with your neighboring countries in modern times? Give some example how we have overcome these difficulties in the present day. क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी पर पड़ोसी देशों के अंतर्क्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा की गई यात्रा के ग्रसन के तटस्थ किया है। एक्टिविटी: ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया ऑन द एटलस स्कूल एनसीईआरटी। ये आपके मैप के बारे में बताया गया है जो एटलस बुक आती है मैप की। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।